Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of IT. Students, in my previous video, I have taught you about the elements of communication skill. In today's video, I am going to teach you about the communication cycle and elements of communication cycle. Students, we know communication is one of the most important पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ह्यूमन लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक मीनिंग जो होती है ह्यूमन लाइफ में वो ऐड करता है। चाहे हमको किसी से संबंध बनाना हो, एक दूसरे से फ्रेंडशिप करनी हो, तो बिना कम्युनिकेशन के हम लोग फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हैं। चाहे कुछ सीखना हो, एजुकेशन के सेक्टर में ले लें हम लोग, या फिर प्रोफेशनल फील्ड में ले लें, हर जगह कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो हम लोग लाइफ में कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हम लोग अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। अब एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता कैसे है, इस वीडियो में आपको वन बाय वन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, communication cycle is the process by which a message is sent by an individual and it passes through a chain of recipient. Students, communication cycle is the process, ये एक प्रोसेस होता है by which a message is sent by one individual, जिसमें मैसेज एक इंडिविजुअल को भेजा जाता है और ये कई कड़ियों से होते हुए, एक चेन से होते हुए वन बाय वन रिसिपेंट तक पहुंचता है। द टाइमिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ कम्युनिकेशन साइकिल इज बेस्ड ऑन हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर फीडबैक टू बी रिसीव्ड बाय इनिशियल सेंडर। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है कि कितने टाइम बाद एक इफ़ेक्टिव फीडबैक सेंडर को रिसीवर से मिलता है। कम्युनिकेशन साइकिल्स आर प्रेजेंट इन सोशल सर्किल and business landscape and exist in various form of life. Students, communication cycle लाइफ के जीवन के हर क्षेत्र में होता है। जब भी हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे एक कम्युनिकेशन साइकिल ज़रूर क्रिएट होती है। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन साइकिल इज़ अ वे in which group can measure the effectiveness of interaction and messaging. The best cycle are those that tap into the most effective engagement resources and promote rapid and depth visibility of correspondence. The speed with which document and ideas pass through the entire communication cycle measure the effectiveness of these system. Students, communication cycle include resources such as email chains, social media outlets, and VoIP means voice over internet protocol outlets. The more appropriate and acceptable these are individual in the business environment, the faster the response time and is the more quickly the initial sender gets a response. The point of a communication cycle is to generate rapid and accurate interaction between the parties involved in that communication. It must maintain access to others at high priority frequency. The cycle exists in private, social group, and business teams alike. स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन साइकिल इस तरह जनरेट होता है ताकि
दोनों पार्टी जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो उन दोनों को रैपिड इंटरेक्शन कर सके, दोनों एक दूसरे से रैपिड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें, चाहे वो मैसेज हो या उस मैसेज का फीडबैक हो। These cycle exist in private social groups and business teams alike. Students, communication cycle exactly it basically involve the conveying and receiving of messages between two individual or entities in an easy to understand format. Students, communication involve the conveying and receiving of message। इसमें मैसेज को भेजना और रिसीव करना दो पार्टी के बीच इन्वॉल्व होता है, जिसमें एक लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है जिसको दोनों पार्टी ईजिली अंडरस्टैंड कर पाती हैं। टॉकिंग एंड इवन लिसनिंग आर ऑल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, बातचीत करना और सुनना दोनों चीज़ें कम्युनिकेशन का हिस्सा होती हैं। टॉकिंग एंड इवन लिसनिंग आर ऑल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। Our ability to assign values to sound, sign, and symbol makes us different from all other animals on earth. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ह्यूमन कैन हम लोग आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं या दूसरों की बात को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, और ये चीज़ें हमको बाकी लिविंग थिंग से, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उन सब से हमको यूनिक बनाती है, अलग बनाती है। अथर एंड प्रोफेसर युवाल नोर हरारी इन हिज बुक एक्सपेंसियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड laid emphasis on the importance of language in making humans. The smartest animal on this planet is human. उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट एनिमल अर्थ पे अगर कोई है तो वो हम हैं, दैट इज़ ह्यूमन। थैंक्स टू कम्युनिकेशन वी आर नाउ एबल टू, उसके लिए उन्होंने कम्युनिकेशन को थैंक्स कहा। वी आर नाउ एबल टू डू मैनी थिंग्स दैट वर unimaginable to our cave dwelling ancestor. Students, now what is a communication process? Communication process क्या होता है? The communication process start with the formation of ideas by sender. Students, the communication process start with the formation of ideas by sender. स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है उस आइडिया से जो सेंडर पहले भेजता है, हु देन ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू अ चैनल आर मीडियम टू रिसीवर, और वो मैसेज एक चैनल के थ्रू होते हुए रिसीवर तक पहुंचता है। द रिसीवर गिव्स द फीडबैक इन फॉर्म ऑफ मैसेज आर अप्रोप्रिएट सिग्नल इन द गिवन टाइम फ्रेम टू कंटिन्यू द कम्युनिकेशन साइकिल। उसके बाद जब रिसीवर उस मैसेज को अंडरस्टैंड करके उसी सिग्नल में, उसी मीडियम में वो अपना रिस्पॉन्स या फीडबैक भेजता है, तब कहीं ये कम्युनिकेशन साइकिल क्रिएट होता है और कंटिन्यू चलता रहता है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये जानने वाले हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं। तो देयर आर 7 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। हियर आर द डिटेल्स। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन प्रोसेस में टोटल 7 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, और ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? लेट अस सी। फर्स्ट वन इज सेंडर। स्टूडेंट, सेंडर मीन्स भेजने वाला। इन्फॉर्मेशन को जो पर्सन या जो पार्टी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती है, जो मैसेज को भेजती है, उसको हम लोग सेंडर कहते हैं।
द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट विद द सेंडर। किसी भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट जो व्यक्ति करता है वही क्या होता है, सेंडर होता है। दिस इज द एंटिटी दैट विल यूज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू शेयर हर थॉट। This is the entity that will use the means of communication to share her thoughts. The sender starts communication cycle by deciding to convey her thoughts and choose the format to use. The sender manages her thought, seek clarity and decides what exactly she want to put forth. स्टूडेंट, सेंडर जो होता है वो थॉट को अपने मैनेज करता है, सीक क्लैरिटी, और उसमें क्लैरिटी के साथ वो मैसेज सेंड करता है ताकि सामने वाले को वो मैसेज समझ में आए, क्लियरली समझ में आए। द सेंडर नीड्स टू गैदर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड रिलीवेंट आइडिया इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। हाँ, सेंडर को ज़रूरत होती है कि जिस मुद्दे पे भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जिस टॉपिक पे कम्युनिकेशन हो रहा है, उस बारे में उसके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो और सटीक जानकारी हो ताकि कम्युनिकेशन सही तरीके से हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, अ राइटर बिगन विथ एन आइडिया एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ बुक। स्टूडेंट्स, सेकेंड थिंग इज encoding. What is encoding? Encoding is the step in the process of communication. Students, encoding भी कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है वेयर द सेंडर डिसाइड्स हाउ सी वांट टू कन्वे हर थॉट, जिसमें सेंडर डिसाइड करता है कि किस जरिए वो अपनी थॉट को कन्वे करेगा, भेजेगा। सेलेक्टिंग राइट वर्ड्स, एसोसिएट सिंबल्स in verbal communication are gesture, tones, and sound in non-verbal communication are ways of encoding a thought. सही शब्दों का चुनाव, एसोसिएटेड सिंबल, उससे संबंधित सिंबल वर्बल कम्युनिकेशन में, या गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, टोन्स, साउंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इनकोडिंग का काम करते हैं, जिससे जानकारी या इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजी जाती है। टू मेक इनकोडिंग ईजियर, इट इज़ इम्परेटिव टू नो हु इज़ द रिसीवर। For example, Ruskin Bond write clean and short sentences that invoke visual to instill wonder among his readers are children. Now, second one is message. Students, message is formed after the sender decides what she wants to put forth and how she wants to convey it. मैसेज फॉर्म होता है कब, जब सेंडर डिसाइड करता है व्हाट सी वांट टू पुट फोर्थ, कि वो क्या रखने वाला है सामने, एंड हाउ सी वांट टू कन्वे इट, और किस तरीके से या किस माध्यम से वो उस मैसेज को संचालित करेगा। इट इज़ आल्सो नोन एज इनकोडिंग, इसी को हम लोग इनकोडिंग भी बोलते हैं। द नेचर ऑफ द मैसेज कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द मीडियम you use and the audience for which it is meant. Always remember that for communication to be successful, it is important that listener or reader understand the message. किसी भी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है कि लिसनर या रिसीवर जो भी हो, उसको उस मैसेज को जो सेंडर ने भेजा है वो क्लियरली समझ में आना चाहिए, 100% समझ में आना चाहिए, तभी वो एक उचित या सटीक फीडबैक दे पाता है। नेक्स्ट वन इज चैनल आर मीडियम। Friends, in order to better explain the process of communication, one has to pay close attention to one crucial wheel of this cycle, which is the medium. This screen that you are reading, this article on the newspaper that slides in every morning through your door, the television you watch, your favorite movie on all the medium,
it is imperative to consider the medium used in information transmission while encoding the message, or it falls to reach the audience effectively. बच्चों, स्टूडेंट्स, चैनल या मीडियम ये वो माध्यम होता है जिससे मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कन्वे होता है। जैसे हम लोग एक दूसरे से अगर वॉइस टू वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं तो उस टाइम एयर जो होता है वो मीडियम होता है जो वॉइस को एक जगह से दूसरी जगह लाने का काम करता है। सो चैनल इज आर मीडियम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज इन कम्युनिकेशन साइकिल। दिस स्क्रीन, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस आर्टिकल को, न्यूज़पेपर दैट स्लाइड्स इन योर एवरी मॉर्निंग, या सुबह आप जो इन्फॉर्मेशन न्यूज़ पेपर में पढ़ते हैं या टीवी पे देखते हैं तो वो क्या है, दैट इज़ थ्रू सिग्नल आर ऑन द पेपर यू आर रीडिंग इज मीडियम फॉर कैरी आउट इंफॉर्मेशन। इट इज़ imperative to consider the medium used for information transmission while encoding the message, or it fails to reach the audience effectively. Students, next one is receiver. रिसीवर कौन होता है? रिसीवर वो व्यक्ति या वो पार्टी होती है जो इन्फॉर्मेशन को सुनती है और फिर उसके बाद वो अपना फीडबैक देती है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट अ रिसीवर टू लेंड एन ईयर। Whenever a sender writes or say or sing or express anything, it's meant to be read or experienced. The receiver is a crucial part of the process. किसी भी कम्युनिकेशन में रिसीवर क्या होता है, एक बहुत ही क्रूशल पार्ट प्ले करता है जिसके बिना कोई भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। The receiver gather the information presented by broadcasted by sender and begin. The receiver gathers the information presented by or broadcasted by sender and begin to understand it. रिसीवर जो भी इंफॉर्मेशन सेंडर से या बिगनर से लेता है उसके बाद उसको उस इंफॉर्मेशन को सुन करके वो एक उचित फीडबैक तैयार करता है और फिर उस फीडबैक को वो सेंडर को वापस भेज देता है। वी मेक टर्न्स बिटवीन बीइंग अ सेंडर एंड बीइंग अ रिसीवर। वी टेक टर्न्स बिटवीन बीइंग अ सेंडर एंड रिसीवर। तो किसी भी कम्युनिकेशन में एक के बाद एक सेंडर और रिसीवर अपने इंफॉर्मेशन को व्यक्त करते हैं और जो एक माध्यम के थ्रू, एक चैनल के थ्रू एक दूसरे में संचालित होता है जिससे कम्युनिकेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है। वी टेक टर्न्स बिटवीन बीइंग अ सेंडर एंड बीइंग अ रिसीवर। यू आर रिसीवर व्हेन यू वॉच अ मूवी एंड सेंडर व्हेन यू टेल योर फ्रेंड्स हाउ द मूवी वॉज। जब कभी आप कोई मूवी देखते हैं तो उस टाइम आप सेंडर हैं, सॉरी रिसीवर हैं, लेकिन जब आप उस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स को सुनाएंगे कि कितनी अच्छी स्टोरी थी मूवी की, देन यू विल बी अ सेंडर। नेक्स्ट वन इज डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है? नो मैटर हाउ वेल द मैसेज इज क्राफ्टेड, ये मैटर नहीं करता कि मैसेज कितनी अच्छी तरह बना हुआ है, इट विल फेल टू मेक एन इम्पैक्ट इफ द रिसीवर डज नॉट possesses द टूल्स टू डिकोड द मैसेज। अगर सेंडर या रिसीवर अगर उस मैसेज को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है, डिकोड नहीं कर पा रहा है, तो वो मैसेज क्या है, बेकार है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक एग्जांपल ले लें, 9 year old बॉय मे नॉट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ हरारीज बुक। एक छोटा बच्चा वो शेक्सपियर या सोक्रेटिस की बुक के पॉइंट्स को नहीं समझ सकता। सो इट मीन्स he cannot decode what is written in that book. While growing up, we also build the ability to decode various messages, even if word beautiful has one meaning in all the dictionaries globally, it would undoubtedly mean something.
So we decode any message by our own mechanism, thoughts, memories, and create our own meaning. So decode is the process of understanding the message sent by sender. Feedback. Students, the process of communication is long one. Communication does not stop after a thought or idea expressed by sender. It creates ripples through time, like a stone slung in a peaceful lake. फीडबैक इज़ वन ऑफ द लास्ट स्टेज ऑफ द कम्युनिकेशन. किसी भी कम्युनिकेशन में फीडबैक जो होता है वो लास्ट स्टेज होता है. आफ्टर अ मैसेज इज इनकोडेड, सेंट ओवर अ मीडियम, रिसीव्ड एंड डिकोडेड, देयर इज़ नीड फॉर कम्युनिकेशन टू कीप मूविंग. मैसेज जब सेंड होता है किसी सेंडर के द्वारा और वो रिसीवर तक आता है, फिर रिसीवर जब उसको डिकोड मीन्स समझता है, तो फिर उसके बाद कम्युनिकेशन को जारी रखने के लिए फीडबैक ज़रूरी होता है. थ्रू फीडबैक द रिसीवर बिकम द सेंडर एंड ब्रॉडकास्टिंग द व्यूज़ अबाउट द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड. जब कोई पर्सन फीडबैक देता है, इट मीन्स उस टाइम वो सेंडर हो जाता है, और सेंडर जो पहले क्वेश्चन पूछा जाता है वो उस टाइम रिसीवर हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फ्रॉम माई टूडेज़ वीडियो. In my next video, we will discuss more about communication. Until then, have a great day.